students, we are seeing class 8 chapter number 7, that is conservation of plants and animals. Okay, in the previous video we have studied what is different way by which plant and animals are conserved. Okay, we have seen that there are some national parks, sanctuaries, etc., in which plants and animals are conserved. The very first definition in this lesson we have studied is deforestation, means cutting of plants in the forest is called as deforestation. And after that we have discussed what are the effects of deforestation. डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स हमने स्टडी किए थे. जो इफेक्ट्स में हमने क्या देखा था, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नंबर 1, लोअरिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. उसके बाद में हमने देखा था कि द इंक्रीज ऑफ फ्लड्स, डेजर्टिफिकेशन. उसके बाद में हमने देखा था लेस रेनफॉल, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रिड्यूस्ड. ओके, देन और क्या देखा था हमने, ये जो चीज़ें हैं हमने रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू consequences of deforestation that we have studied in the previous video in detail. Okay, now we are going to focus on the next topic, that is conservation of forest. दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. यहाँ पे एक नया वर्ड, आप यहाँ पे नया, एक्चुअली ये भी हम पहले से स्टडी कर चुके हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट, टू सेव, बचाना, संभल के रखना. दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन. ओके, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक. Having become aware of the effects of deforestation, हमें सबको अभी पता है कि what are different effects of deforestation. Deforestation हमें कैसे हार्म करता है, ये प्रोसेस हमें क्या है पता है ना. अभी if there are so many disadvantages of deforestation, तो इसका मतलब क्या है, हमें deforestation को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए. ओके, पहेली and बूझो are worried. They go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. Professor Ahmed arranged a visit to Biosphere Reserve for पहेली, बूझो and their classmates. नई टर्म आई है यहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है, ये हम अभी देखने वाले हैं. ओके, रिजर्व, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड. फॉर पहेली, बूझो एंड देयर क्लासमेट्स. He select a place called Pachmadi Biosphere. Name ध्यान में रखना, it is very important. He select a place named Pachmadi Biosphere Reserve. He knows that plants and animals found there are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to lower western Ghats. Professor Ahmed believed that the biodiversity found there is unique. He requested Madhavji, the forest employee, to guide the children inside the Biosphere Reserve. इन्होंने क्या किया, प्रोफेसर अहमद ने अपने स्टूडेंट्स के लिए बायोस्फीयर रिजर्व में एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की. कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में, पचमढ़ी. हर बायोस्फीयर रिजर्व का जो होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लोरा और फौना होता है. मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स उस रीजन में ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, उन्हें वहाँ का फ्लोरा और फौना बोला जाता है. तो उसने क्या किया, एक गाइड भी अपॉइंट किया कि जो अपने स्टूडेंट्स को वो बायोस्फीयर रिजर्व की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके. ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग, कौन, द गाइड. ही एक्सप्लेन्स दैट preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, they are part of our national heritage. जैसे हमारे नेशनल हेरिटेज में किले आते हैं, है ना, जैसे अजंता केव्स हमारे नेशनल हेरिटेज का पार्ट है. इन द सेम मैनर जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे रीजन के कुछ खास प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनकी ग्रोथ होती है ना. एंड फॉर दिस पर्पस दिस बायोस्फीयर रिजर्व्स आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज. ओके, माधव जी एक्सप्लेन to children that
from our personal effort and efforts of society, government, agencies also take care of forest and animals. The governments lay down the rules, methods and policies to protect and conserve them. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserve, etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in that area. एक पर्टिकुलर एरिया जो है जिसे या तो सेंचुरी बोला जाता है या नेशनल पार्क बोला जाता है, हर किसी का फंक्शन अलग अलग है, हाँ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर, और बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। ये जो 3 थिंग्स यहाँ पे मेंशन की है हमने, सेंचुरीज, नेशनल पार्क and biosphere reserve, these are places where conservation of plants and animals is done. These are the places where conservation of plants and animals is done. कौन कौन से? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। Now let us see the meaning of sanctuary, biosphere reserve and national parks. Okay, to protect the flora and fauna and their habitats, protected areas called wildlife sanctuary, national parks and biosphere reserve have been unmarked. Okay, टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना। अभी यहाँ पे 2 वर्ड्स आए हैं, देखो, फर्स्ट वर्ड इज फ्लोरा एंड अनदर इज फौना। फ्लोरा वर्ड इज रिलेटेड टू दी प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जो फ्लावर्स या प्लांट्स है, ट्रीज हो सकते हैं, ग्रास हो सकती है, सभी प्लांट कैटेगरी में आने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं फॉरेस्ट के, वो आते हैं फ्लोरा कैटेगरी में। ओके, और जितने भी एनिमल्स हैं, wild animals found in particular forest, they are called as fauna. फॉरेस्ट ही नहीं, कोई भी लैंड कंसिडर करो, वो लैंड पे, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र अगर हमने कंसिडर किया तो महाराष्ट्र में कितने तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्लोरा। और जो एनिमल्स हमारे रीजन में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, वी कॉल देम एज फौना। ओके, सो टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना and their habitats, habitat means their living places, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserve have been earmarked. Okay, plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there. ऐसे प्लेसेस जिसमें प्रोटेक्शन किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है कि वो पर्टिकुलर रीजन में आपको ये चीज़ें बैंड है, आप प्लांटेशन नहीं कर सकते। प्लांटेशन मतलब कैसे, आप अपनी मर्जी से ट्रीज वहाँ पे प्लांट नहीं कर सकते, आप वहाँ पे खेती नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ग्रेजिंग, आप गाय भैंस बकरी को वहाँ पे चराने नहीं ले जा सकते, आप ट्रीज कट नहीं कर सकते वहाँ पे, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन दैट रीजन, पोचिंग मीन्स एनिमल को परेशान करना इज नॉट अलाउड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, मीन्स दैट एरिया इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब बैन होता है वहाँ पे, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे क्या होता है, बैन होता है। ऐसी जो प्रोटेक्टेड प्लेसेस है, दिस प्लेसेस आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज, कौन कौन से ऑप्शन है वहाँ पे, दे आर कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, लेट अस मूव to the first definition, wildlife sanctuary. Areas where animals are protected, areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. Areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat is called wildlife sanctuary. जहाँ पे animals को protection दिया जाता है, ऐसी प्लेसेस जहाँ पे सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है, दोज प्लेसेस आर कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, द सेकेंड इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल पार्क? नेशनल पार्क मीन्स एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, areas reserved for wildlife where they can freely use the habitat and natural resources. Okay, national park means what?
नेशनल पार्क मीन्स एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ। अभी अगर वाइल्ड लाइफ बोलोगे आप तो यहाँ पे भी किसे ये किया जाता है, प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू व्हाट, एनिमल्स। एनिमल्स को प्रोटेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब जहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो भी है, लिविंग जो एनिमल्स है, जो वहाँ पे फ्रीली रोम कर सकते हैं किसी भी एरिया में, ऐसे प्लेसेस को बोला जाता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोथ प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एनिमल्स। नेशनल पार्क में एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स को भी प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। Biosphere reserve are large areas. Biosphere reserve are large areas of protected land for conservation of wildlife, plants and animal resources and traditional life of tribal living in the area। मतलब बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है उसमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन होता है, उसके अंदर के प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन होता है। एट द सेम टाइम जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उस एरिया में रहने वाले ट्राइबल पीपल, उनको भी यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एक बड़ा, मतलब कुछ एक आध जिला हो सकता है, एक बहुत बड़ा सा एरिया हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, जैसे इफ वी आर कंसिडरिंग अर्थ इटसेल्फ इज ए लार्ज बायोस्फीयर, है ना। अर्थ खुद भी क्या है, एक बायोस्फीयर है, बड़ा सा बायोस्फीयर, दैट वी नो। सो ये जो बायोस्फीयर एरिया होता है ये बहुत बड़े एरिया में, वाइड एरिया में स्प्रेड होता है, जिसमें कई सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज आ सकती है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो हमने क्या देखा, द गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स एंड मेथड्स एंड पॉलिसीज। The government laid down rules, methods and policies to protect and conserve them. Them means what? Wildlife and plants and animals. Okay, and for this purpose wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserve etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in the area. Let us move to the next activity 7.3. Find out the number of national park and wildlife sanctuaries and biosphere reserve in your district। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से, मतलब क्या है, कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व कुछ है क्या। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रही हूँ। सी, हमारे यहाँ पे नज़दीक में यावल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ढूंढो, थोड़ा सा गूगल करो और ये जो एक्टिविटी है आपको सॉल्व ट्राई करनी है। नॉट जस्ट इन अवर रीजन, इन अवर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ पे हैं, नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, शो दिस एरियाज इन द आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। ओके, now see बायोस्फीयर रिजर्व। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच पार्ट वन बाय वन। अभी हमने पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्या कर रहे हैं, हम केस स्टडी कर रहे हैं। चिल्ड्रन along with Professor Ahmed and Madhav ji एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया था वहाँ पे ये लोग एंटर हो गए। कौन सा, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। ओके, और बायोलॉजिकल रिजर्व्स में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी अलग अलग काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमंस, वो पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करने वाले, वो सारे जो है उनको, उनके लिए, उनसे बना हुआ होता है बायोस्फीयर रिजर्व। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द
variety of plants and animals and microorganisms generally found in an area. डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी की, ये भी नोट करनी है. बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन आपको नोट करनी है. सेकंड, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी आपको नोट करनी है. बायोडाइवर्सिटी इट इज द वाइड वैरायटी ऑफ plants, animals and microorganisms generally found in an area. सिर्फ प्लांट और एनिमल्स नहीं, हाँ, जितने भी है, even microbes are also count in biodiversity. The biosphere reserve help to maintain a biodiversity and culture of that area. That is the importance of biosphere reserve. What it help to maintain द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया. उस पर्टिकुलर एरिया का कल्चर मेंटेन करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, हेल्प करता है. ऑल काइंड ऑफ कल्चर, हाँ, प्लांट्स का कल्चर, एनिमल्स का कल्चर एंड इवन ह्यूमन कल्चर अल्सो. ए बायोस्फीयर रिजर्व में अल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट. जैसे मैंने आपको बताया कि एक बायोस्फीयर जो होता है वो साइज में बहुत बड़ा होता है और इसके अंदर एक आध सेंचुरी, एक आध नेशनल पार्क, ये कैसे आ सकते हैं, आराम से उसके अंदर बैठ सकते हैं. इतना वाइड एरिया में ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. ओके. ए बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट. इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, the Pachmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Pachmari. Okay? पचमढ़ी बायोस्फीयर रीजन में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सातपुरा और दो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बोरी और पंचमरी नाम की. ठीक है. तो एक बायोस्फीयर रीजन जो होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये साइज में बहुत बड़ा होता है. उसमें एक से ज़्यादा नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसके अंदर कंटेंट हो सकती है. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज, सॉरी, ये टेबल आपको फिल करना है एक्टिविटी 7.1 के ऊपर बेस्ड. आपके एरिया में नेशनल पार्क है क्या, उसका नाम क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका नाम, बायोस्फीयर रिजर्व उसका नाम. ओके. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम. सी, दिस इज व्हाट, दिस इज पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. ओके. क्या क्या है देखो इसमें, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है पचमढ़ी का. ओके. इसमें आप इसकी पूरी डायग्राम अगर देखो तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पचमढ़ी सेंचुरी है, उसके बाद में बोरी सेंचुरी है, ये तवा रिजर्वायर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाटर का रिसोर्स है, और ये सातपुरा नेशनल पार्क इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है. ठीक है. सो ये इतने वाइड एरिया में इस क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. Activity 7.4. List the factors disturbing the biosphere of your area. Some of these factors and human activities may disturb the biodiversity unknowingly. List these human activities. How can these be checked? Discuss in your class and write a brief report in your notebook. हमारे एरिया में अगर बायोस्फीयर रिजर्व है या कोई अगर हिल है जो जिसके ऊपर वाइड वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट थी, बहुत सारे प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, लेकिन अभी उसका जो नंबर है वो कम हो गया है, या ऐसे बोलो कि वो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजंस फाउंड. पहला जो है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज. नेचर कैन ऑल्सो अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी बट ह्यूमन एक्टिविटीज अभी जो है जब सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी रीजन में जब कोई डैम बनता है, ओके, अगर हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया तो डैम के पीछे उसका जो बैक वाटर है उसका रिजर्वायर बन जाता है. अभी इमेजिन करो कि मैंने मतलब यहाँ पे आपने कोई तो भी डैम कंस्ट्रक्ट किया, तो डैम की वजह से क्या हुआ, इतने रीजन में वाटर का रिजर्वायर बन जाएगा बहुत बड़ा, है ना. ओरिजिनली ये रिजर्वायर प्रेजेंट नहीं था, लेकिन अभी ये रिजर्वायर, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, है ना,
तो अभी ये वाटर का रिजर्वायर बनने की वजह से इतने रीजन में जितना भी लाइफ पॉसिबल प्रेजेंट था, कौन सा लाइफ, वाटर टेरेस्ट्रियल लाइफ, मतलब ज़मीन के ऊपर कई सारे प्लांट्स होंगे, प्लांट्स के ऊपर कई सारे एनिमल्स होंगे, ट्रीज होंगी, है ना, कई सारे एनिमल्स के उसके अंदर घर होंगे ज़मीन के अंदर, तो ये सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया ये डैम के बनने की वजह से, है ना। सो वी कैन से दैट डैम इज एन एक्टिविटी विच destroy the land biodiversity which is present in that particular region। तो ये कैसे एक एक्टिविटी है, ऐसे कई सारे, फॉर एग्जांपल जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो, कोई हॉस्पिटल अगर बनाते हो किसी जगह के ऊपर, किसी हिल के ऊपर, कुछ गार्डन भी बनाया, तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, वहाँ के नेचुरल प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टर्ब करते हो, ठीक है। तो ऐसे अपने आजू बाजू में कुछ हुआ है क्या किसी बायोडाइवर्सिटी के साथ में, तो ये आपको क्या करना है, इसका रिसर्च करके आपको नोट करना है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना। As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They are happy to see all tall teak trees and animals inside the forest. Suddenly, Paheli finds a rabbit and wants to catch it. She starts running after it. Professor Ahmed stops her. He explained that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. Madhavji explained that animals and plants typically found in a particular area typically belong to a particular area. The plants and animals found in the particular area as termed as flora and fauna respectively of that area। ठीक है, हम कहीं पे भी किसी भी जगह पे घूमने जाते हैं तो हमें आदत होती है कि हम वहाँ पे जो मंकीज प्रेजेंट है उनको थोड़ा सा खाना देते हैं। अगर कहीं पे तालाब रहा, तालाब के अंदर जो फिश है तो हम उसको ब्रेड के जो क्रम से उसको खाने के लिए देते हैं। ये सारी चीज़ें उनके लाइफ का पार्ट नहीं है ना। हम जाते, हमें लगता है हम उनके लिए उनको खाना दे रहे हैं, मतलब वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ फेवर टू देम, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ डिस्टर्बिंग देयर लिविंग हैबिट्स एंड इट इज़ ऑल्सो डिस्टर्बिंग देयर सराउंडिंग। तो हमें बाहर घूमने जाते समय ये केयर लेनी चाहिए कि वी शुड नॉट एटलीस्ट डिस्टर्ब देम। ओके, नाउ सी दिस पिक्चर। बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका पचमढ़ी का, उसके अंदर देखो क्या क्या होता है, कौन कौन से प्लांट्स हैं। साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फन, अर्जुन। These are different plants found in Pachmadi biosphere are the flora and chinkara, blue bull, barking deer, cheetah, leopard, wild dog, wolf, etc. are examples of fauna of Pachmadi biosphere reserve. Okay, तो ये जो है पचमढ़ी में पाए जाने वाले फ्लोरा एंड फौना है, यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाए हैं, देखो। ओके, ये जो है अलग अलग एनिमल्स जो पचमढ़ी बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है प्लांट्स जो वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। हर किसी का नाम यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। यू कैन गो थ्रू दिस पिक्चर slowly at home, okay, and find the names of animals and plants which are given in this table. Okay, now we will move to the next page. 7.5 activity, identify the flora and fauna of your area and list them। हमने पचमढ़ी का तो हमें पता चल गया अभी कि मेन प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे कौन से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतने ही एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पे होते हैं क्या? नहीं, देर आर वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट रीजन। जैसे अगर आप आपके घर से बाहर निकलते हो तो वहाँ पे आपको कितने सारे हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या आप गारंटी के साथ बता सकते हो कि आपके एरिया के सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स के नाम आपको आते हैं? चलो ये एक्टिविटी करो। आपके एरिया में कम से कम 20 अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। तो आप देखते हैं आपको कितने प्लांट्स और एनिमल्स आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो आपके सराउंडिंग में के। ठीक है, दिस एक्टिविटी ऑल्सो यू हैव टू डू इन योर नोटबुक।
Now let us move to the next topic, that is endemic species. Endemic species. See, soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and this is endemic. This is endemic to this area. Okay? एक जायंट स्क्वेयर देखी उन्होंने जो कहाँ की एंडेमिक है, जो पचमढ़ी बायोस्फीयर की एंडेमिक है. एंडेमिक का मतलब है ये जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीसीज ये सिर्फ पचमढ़ी बायोस्फीयर में ही पाई जाती है. ओके तो ऐसे कई एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, उस एरिया के बाहर वो देखने को नहीं मिलते. दे आर कॉल्ड एज एंडेमिक टू दैट area. They are called as endemic to that area. Okay, now let us see the meaning of endemic species. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. ऐसे स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया का ही पार्ट होता है, सिर्फ उसी रीजन में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज endemic species. They are called as endemic species. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एरिया कंसिडर करेंगे आप, तो यहाँ पे कौन सी ट्रीज पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैंगो. जैसे आपको पता है ना, हापुस किस रीजन में पाए जाते हैं, रत्नागिरी कोंकण में पाए जाते हैं. तो वो कोंकण की क्या होगी, एंडेमिक स्पीसीज होगी. क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ सिर्फ वहीं पे होती है, बाकी रीजन में नहीं होती. ठीक है. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री. एक कुछ एनिमल्स एक पर्टिकुलर कंट्री में ही पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं. तो उस पर्टिकुलर रीजन के वो क्या हो गए, एंडेमिक पार्ट हो गया. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. माधवजी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ. देखो ये कौन सी ट्री है, दिस इज ए वाइल्ड मैंगो ट्री. दिस इज एंडेमिक ऑफ पचमढ़ी. They are endemic flora of Pachmadi. See the example of endemic flora of Pachmadi biosphere. What is it? What is it? It is wild mango. ठीक है. Bison, giant squirrel, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. और यहाँ पे animals कौन से पाए जाते हैं जो पर्टिकुलर उसी रीजन में पाए जाते हैं? They are bison, Indian great squirrel and flying squirrel. Professor Ahmed explained that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. अभी ये जो है ये पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बाइसन का या ग्रेट इंडियन जायंट स्क्विरल की बात करें तो ये सिर्फ हमारे एरिया में ही पाए जाते हैं. दे आर एंडेमिक इन फॉर एग्जांपल पचमढ़ी बायोस्फीयर. अभी अगर इस एरिया में दूसरे कोई बाहर से लाए हुए एनिमल्स या प्लांट्स की अगर हम ग्रोथ करें, एनिमल्स की कंसिडर करें, तो वो एनिमल का पॉपुलेशन आपके इस एनिमल के पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकता है. ठीक है. उसके बाद में जो भी आप कंस्ट्रक्शन, डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हो या कोई भी रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हो और उसके लिए अगर यहाँ के प्लांट्स काटे जाते हैं तो ये जो है इंडियन जायंट स्क्विरल, इसका जो होम है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये जो है दूसरे किसी एरिया में पाए जाने का कोई चांस ही नहीं है ना, क्योंकि वो वहाँ पे एंडेमिक नहीं है. तो इस वजह से ये जो एनिमल्स है, एंडेमिक एनिमल्स, ये क्या है, डिस्ट्रॉय होने के, ये एक्सटिंक्ट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. ओके, सो व्हाई दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन? Because the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species, they are dangerous for the existence of these endemic plants and animals. Okay, see, this is what we call as giant squirrel. Giant squirrel का example है ये. What is the meaning of species?
Species is a population, a group of population which are capable of interbreeding. Species मतलब जैसे squirrels कई तरह के होंगे, है ना, लेकिन जो मतलब कई तरह के मतलब there are thousands of squirrels found, है ना, और ये squirrels जो है वो क्या कर सकते हैं, आपस में reproduction की process कर सकते हैं. They are capable of interbreeding. So what they are called as species. This means that the member of species can reproduce fertile offsprings only with the members of their own species and not with the members of other species. Members of species have common characteristics. ठीक है. Activity 7.6, find out the endemic plants and animals of the region where you live. आपके region में कौन से plants और animals endemic हैं? Try to find them. Okay, now see the next topic, that is wildlife sanctuary. हमारा 30 मिनट्स का वीडियो हो गया है. ये जो टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा आपका सुनने का स्टैमिना नहीं होगा, मेरा बोलने का स्टैमिना नहीं है. जितनी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई है वो सारी एक्टिविटीज़ आपको क्या करनी है, आपके नोटबुक में लिखनी है, और जो डेफिनेशंस मैंने मार्क करके दी है वो डेफिनेशंस भी आपको आपके नोटबुक के अंदर लिखने हैं. ओके, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.